Good afternoon, students. Today I am going to start the seventh chapter of Indian Economic Development of Class 12 CBSE Economics. And name of this chapter is Employment, Growth, Informalization and Other Issues. Look, in this chapter, we'll study about the condition of employment in India. Means in this chapter, we have to study the various aspects of employment in our country, like what is the growth of employment in our country, as well as in our country, there is a problem related to employment that is known as informalization of workforce. What is this problem? We are going to study in detail about this problem also, as well as the causes of this problem, as well as we'll study in this chapter about the various other issues related to employment, like condition of unemployment, causes of unemployment, and steps taken by government of India to remove the problem of unemployment. Not only this, but we'll study this thing also, that what is the condition of rural employment, urban employment, men employment, women employment. Means all is issues related to employment we have to discuss in this chapter. Is this clear? So first of all, we'll see that what are the main contents which we are going to study in this chapter. First of all, we'll try to understand the meaning of employment, the nature of employment in India, then worker population ratio. What is this? It is a technical term which is related to employment. We'll study this thing also. Then types of workers, then employment in various sectors, which is also known as occupational structure, then casualization of workforce, then informalization of workforce, then causes of unemployment in India, then types of unemployment in India, and in the last part of this chapter we'll discuss about the steps taken by government of India to solve the problem of unemployment. So these are the topics or the contents which we are going to study in this chapter. ये वो टॉपिक्स या कंटेंट्स हैं जिनको हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है. तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं टू स्टडी ऑल दिस कंटेंट्स और टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंटेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे एम्प्लॉयमेंट से. एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, पहले हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं. एम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन. एम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन होती है इन विच अ पर्सन हैज़ सम वर्क which is also known as economic activity to do and earned income for his work और economic activity done. मतलब एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई इंडिविजुअल है जिसके पास कोई वर्क करने के लिए है, which is also known as economic activity, और by doing that work or economic activity that person is earning some income. तो इसको बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट. मतलब एम्प्लॉयमेंट में दो कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई यदि होंगी तो उसको एम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा. या एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में दो कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होती हैं. पहला, कोई इंडिविजुअल होगा जिसके पास कोई वर्क होना चाहिए. सम इंडिविजुअल मस्ट बी एंगेज्ड इन सम काइंड ऑफ वर्क, पहली कंडीशन. और दूसरी, दैट इंडिविजुअल मस्ट बी अर्निंग सम इनकम फ्रॉम दैट वर्क डन. यदि ये दो कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होंगी तो हम इसको बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट. फॉर एग्जांपल, सपोज मैं आपको बुलाता हूँ अपने यहाँ और आपसे कोई काम कराता हूँ, आप वर्क कर रहे हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं देता हूँ. सो दिस इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट. सेकेंड कंडीशन, सपोज आपको मैं बुलाता हूँ, कोई भी आपसे वर्क नहीं लेता हूँ, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपसे नहीं कराता हूँ, और इवन आपको मैं रुपीज़ सपोज 1000 पे कर रहा हूँ. तो you are getting some amount of money but you are not doing any work, you are not engaged in any economic activity. तो इस केस में भी एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं कही जाएगी. एम्प्लॉयमेंट तब कहा जाएगा जब मैं आपसे काम करा रहा हूँ, उस काम के बदले कुछ अमाउंट ऑफ मनी आपको पे कर रहा हूँ. मतलब जब वर्क डन होता है और उसके कारण इनकम जनरेशन होती है, दोनों एक साथ होते हैं, तो इसको एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है. इज दिस क्लियर? अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वर्क का मतलब क्या होता है, या इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं. वर्क का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, या इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब इकोनॉमिक्स में वर्क होता है. वर्क का मतलब क्या होता है? लुक, साइंस में वर्क का मतलब अलग होता है. साइंस में वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हैं और उससे उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो उसको वर्क बोला जाता है. बट इकोनॉमिक्स में वर्क का मतलब इंटायरली डिफरेंट होता है. इकोनॉमिक्स में वर्क का मतलब क्या होता है? एनी एक्टिविटी विच कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी ऑफ द कंट्री इज डिफाइंड एज वर्क और इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी के कारण कंट्री में जो जीडीपी है, जीडीपी मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. इट मीन्स दिस एक्टिविटी इज कंट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी, देन दिस एक्टिविटी विल बी डिफाइंड एज
वर्क। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। एक्टिविटीज़ ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ होती हैं उनके कारण जीडीपी इंक्रीज होता है। इसीलिए एक्टिविटीज़ ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ वर्क। लाइक if someone is working as land provider or capital provider or entrepreneur or technology provider or laborer, it means that person is contributing to gdp. It means the work done by that person is a work, activity done by that person is an economic activity or work. Okay, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ कि एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, दोज एक्टिविटीज़ विच कंट्रीब्यूट टू जीडीपी। कौन सी एक्टिविटीज़ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, etc. These are the activities which contribute to GDP. That is why these activities are known as economic activity or work. Means एक person को हम बोलेंगे कि that person is working if that person is contributing in the process of production by providing his land, or he himself is working as laborer or entrepreneur or capital provider or technology provider. We'll say that that person is working and the activity of that person will be termed as work in the sense of economics. So any activity which contributes to GDP of the country is defined as work or economic activity. अब अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि who are the workers? Obviously all those who are engaged in economic activities in whatever capacity, high or low, are workers. ऐसे सभी लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं चाहे ज़्यादा या कम, उन सबको बोला जाता है वर्कर। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वही एक्टिविटीज़ डन बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑल दोज हु आर वर्किंग एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वर्कर। मीन्स ऑल दोज हु आर वर्किंग एज लैंड प्रोवाइडर, कैपिटल प्रोवाइडर, एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर एंड लेबरर आर वर्कर्स। अब एक टर्म होता है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है, उससे पहले मैं बताऊं, हर कंट्री में मिनिमम एज ऑफ वर्क डिफाइन करी जाती है बाय गवर्नमेंट, बाय द पॉलिसी मेकर्स ऑफ दैट कंट्री। वो डिफाइन करते हैं मिनिमम एज ऑफ वर्क। उस एज से कम एज के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनसे वर्क नहीं कराया जा सकता। यदि कोई कराता है तो वो इलीगल हो जाता है। जैसे हमारे कंट्री में मिनिमम एज ऑफ वर्क इज़ 14 ईयर्स। ओके, यदि 14 ईयर्स से कम उम्र के या एज के किसी भी इंडिविजुअल से कोई वर्क कराता है तो इसे चाइल्ड लेबर बोला जाता है। एंड चाइल्ड लेबर इज़ अ क्राइम इन आवर कंट्री, इट इज़ इलीगल। ओके, तो वर्किंग एज ग्रुप हमारे कंट्री में क्या हो जाएगी, एनी एज विच इज़ मोर देन 14 ईयर्स, दैट विल बी नोन एज वर्किंग एज ग्रुप। मीन्स ऑल दोज इंडिविजुअल्स हु आर मोर देन 14 ईयर्स ऑफ एज आर रिलेटेड टू वर्किंग एज ग्रुप। तो जब भी मैं ये टर्म बोलूँगा कि दीज आर रिलेटेड टू वर्किंग एज ग्रुप, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे सभी लोग जो 14 ईयर्स से ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में 14 ईयर्स को मिनिमम ईयर ऑफ वर्क डिफ़ाइन किया गया है। मिनिमम एज ऑफ वर्क डिफ़ाइन किया गया 14 ईयर्स को। 14 ईयर्स से कम एज के लोगों को एम्प्लॉय कोई भी नहीं कर सकता या काम पे कोई लगा नहीं सकता। तो वर्किंग एज ग्रुप हमारे कंट्री में क्या हो जाएगा, एज ग्रुप मोर देन 14 ईयर्स ऑफ एज। ओके, तो अब लेबर फोर्स का मतलब क्या हो गया, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ ऑल दोज इंडिविजुअल्स हु बिलोंग टू वर्किंग एज ग्रुप। ऐसे सभी लोग जो 14 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के हैं उन सबको बोलते हैं लेबर फोर्स। अब जो लोग 14 ईयर्स से ज़्यादा के हैं वो सब काम कर सकते हैं, सब एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं, लेकिन क्या सबको एम्प्लॉयमेंट मिला होगा, नहीं। तो इसमें से कुछ लोग क्या होंगे, एम्प्लॉयड, और कुछ लोग होंगे अनएम्प्लॉयड। ओके, तो सारे इंडिविजुअल्स जो 14 ईयर्स से ज़्यादा हैं जो वर्किंग एज ग्रुप के हो, चाहे एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड, जब सबको एक साथ ऐड कर देते हैं तो हमको पता चल जाता है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स मीन्स all those individuals who are more than 14 years of age or all those who are belonging to working age group. It includes both employed as well as unemployed individuals. ये हो जाता है। वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है, वर्क फोर्स का मतलब ओनली दोज इंडिविजुअल्स हु आर एम्प्लॉयड, हु आर बिलोंगिंग टू वर्किंग एज ग्रुप, जो 14 ईयर्स से ज़्यादा के हैं और एम्प्लॉयड हैं, वो आते हैं वर्क फोर्स में। मीन्स दोज हु आर एक्चुअली वर्किंग। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ ऑल दोज इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू वर्किंग एज ग्रुप हु आर एक्चुअली वर्किंग। इट इंक्लूड्स ओनली एम्प्लॉयड। तो इसमें केवल एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स आ जाएंगे। इज दिस क्लियर? तो यदि लेबर फोर्स, एक फॉर्मूला हो जाएगा, लेबर फोर्स इक्वल्स टू वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयमेंट।
मतलब एक कंट्री में सपोज एम्प्लॉयड लोगों की संख्या है, जो एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स सपोज 20 लाख हैं और अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या है 10 लाख। ओके, तो वर्क फोर्स क्या हो जाएगा, ऑल इंडिविजुअल्स, तो मतलब वर्क फोर्स हो जाएगा 20 लाख। ओके, और अनएम्प्लॉयमेंट कितने का है, 10 लाख का अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, तो इसमें अनएम्प्लॉयड लोगों को जोड़ देंगे 10, तो टोटल 30 लाख क्या हो जाएगा, लेबर फोर्स। क्योंकि लेबर फोर्स में क्या आ जाते हैं, वर्क फोर्स आ जाती है, मतलब वर्क फोर्स का मतलब एम्प्लॉयड लोग, और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। तो कभी भी आपको यदि ये तीन जो वेरिएबल्स है इसमें से कोई दो दिया गया है, जैसे लेबर फोर्स और वर्क फोर्स दिया गया है तो अनएम्प्लॉयमेंट निकाल सकते हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट या वर्क फोर्स दिया गया है तो आप लेबर फोर्स निकाल सकते हैं। वर्क फोर्स में अनएम्प्लॉयमेंट जोड़ देंगे तो लेबर फोर्स निकल जाएगा। यदि लेबर फोर्स और अनएम्प्लॉयमेंट दिया गया तो यहाँ लेबर फोर्स पुट करिए, अनएम्प्लॉयमेंट साइड चेंज करके वर्क फोर्स की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। वर्क फोर्स का मतलब होता है एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयड जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू वर्किंग एज ग्रुप आ जाएगा, विच इज़ नोन एज लेबर फोर्स। इस तरह से आप लेबर फोर्स क्या है कंट्री का, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या है, इसको विद द हेल्प ऑफ सम डेटा हम अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री with the help of some data. Look, out of total workforce which is 520 million, इंडिया की टोटल वर्कफोर्स 520 मिलियन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे कंट्री में जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स का मतलब क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल। हमारे कंट्री में 520 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड है या वर्कर्स हैं। आउट ऑफ दिस थ्री फोर्थ का मतलब होता है 75% आर रूरल वर्कर एंड रिमेनिंग 25% आर अर्बन वर्कर। तो यदि पूरे कंट्री के वर्कफोर्स को स्टडी करें तो आपको ये पता चल रहा है कि नंबर ऑफ रूरल वर्कर्स इज मोर देन अर्बन वर्कर्स, मतलब इन रूरल एरियाज मोर पीपल आर वर्किंग एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। सेकेंड नेचर क्या है एम्प्लॉयमेंट का हमारे कंट्री में, out of total workforce which is 520 million, as I told you earlier, it 520 million workforce हमारे कंट्री की है, 70% आर मैन एंड रिमेनिंग 30% आर वीमेन। मतलब वर्कफोर्स का क्लासिफिकेशन यदि मैन और वीमेन के बेसिस पे करें तो हमको क्या दिखता है कि नंबर ऑफ मैन वर्कर्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ वीमेन, मतलब मोर मैन आर फाउंड वर्किंग इन आवर कंट्री एज कम्पेयर टू वीमेन। अभी हम केवल रूरल वर्कफोर्स को स्टडी करें कि आउट ऑफ टोटल रूरल वर्कफोर्स कितने मेन है और कितने वीमेन, तो पता चलता है कि आउट ऑफ टोटल रूरल वर्कफोर्स 33.33% मतलब 1/3 आर वीमेन एंड 66.67 आर मेन। सो अगेन इन रूरल एरियाज में भी मेन वर्कर्स की संख्या वीमेन वर्कर्स से ज़्यादा है। यदि अर्बन वर्कफोर्स को स्टडी करें तो पता चलता है कि 1/5 दैट इज़ 20% आर वीमेन and 80% are men. Means in urban areas also there is dominance of men workers. Men workers are greater than women workers. तो ये जो 4 पॉइंट्स हमने अबाउट नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट स्टडी किया इंडिया में, तो इससे दो कंक्लूजन हमको पता चलता है कि ना कंट्री number of rural workers is greater than number of urban workers, means more people are working in rural areas as compared to urban areas, as well as the number of men workers is more than women workers, means more men are working as compared to women. इसके क्या कॉजेज़ हैं उसको आगे हम स्टडी करेंगे, उससे पहले हम स्टडी कर लेते हैं एक और टेक्निकल टर्म विच इज़ नोन एज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है, एक परसेंटेज वैल्यू होती है, परसेंटेज वैल्यू है इसीलिए इसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच में हो सकती है। कोई भी परसेंटेज वैल्यू है तो उसकी वैल्यू 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती टेक्निकली। तो यदि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की वैल्यू सपोज 51 है, मतलब 51% है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बताएगा कि 51% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज़ वर्किंग। सो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो शोज दैट व्हाट प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज़ वर्किंग। इसकी जो भी वैल्यू रहेगी उतने परसेंटेज पॉपुलेशन वर्किंग होगी कंट्री की। यदि किसी कंट्री में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 85% है, मतलब उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का लेवल ज़्यादा है, 85% पीपल आर वर्किंग। मोर इज़ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, मोर विल बी एम्प्लॉयमेंट। लेस इज़ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, लेस विल बी एम्प्लॉयमेंट, मोर विल बी अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो कि लिखा गया है यहाँ पे
इट रेफर्स टू दैट प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ वर्किंग। पॉपुलेशन का ऐसा प्रपोर्शन जो वर्क कर रहा है उसको बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। इसको फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स को साइज ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, कोई भी टर्म जो हमारे सिलेबस में है जिसको हम पढ़े हैं उस पर बेस्ड कोई टेबल दिया जाएगा, उस टेबल के बेसिस पे कौन से कंक्लूजन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं और उन कंक्लूजन्स के कारण क्या हो सकते हैं वो पूछा जाता है। जैसे ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की एक टेबल दी गई है, इसको देखकर ये हमारे कंट्री का करेंट ट्रेंड बता रही है। एट प्रेजेंट हमारे कंट्री में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की कंडीशन क्या है इन रूरल एरियाज़, इन अर्बन एरियाज़, इन मेन पॉपुलेशन, इन वीमेन पॉपुलेशन, ये दिखाया गया है। जैसे देखा जाए तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, टोटल हमारे कंट्री का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो है 44.9। मीन्स इन आर कंट्री 44.9% पॉपुलेशन इज़ एक्चुअली वर्किंग एम्प्लॉयड, रिमेनिंग पॉपुलेशन इज़ नॉट वर्किंग। इज इज क्लियर। अब यदि स्टडी करेंगे व्हाट इज़ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन रूरल एरियाज़ एंड अर्बन एरियाज़, तो पता ही चलता है कि रूरल एरियाज़ में टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज़ 52.1%, whereas in urban areas worker population ratio is 44.6%. means in rural areas 52.1% of total rural population is working, whereas in urban areas only 44.6% of total urban population is working. It means हमको ये पता चल गया यहाँ से कि रूरल एरियाज़ में मोर पॉपुलेशन इज़ वर्किंग एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया। ये वही कंक्लूजन है जो पिछली स्लाइड में हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया निकाला था कि मोर पीपल आर वर्किंग इन रूरल एरियाज एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। सेम कंक्लूजन हमको इस टेबल से भी मिली। अब दूसरी स्टडी हम करते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ मेन एंड वीमेन। तो अब देखते हैं कि हमारे कंट्री में जो टोटल मेन है उनमें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है 74.4% एंड वीमेन में 25.8%। तो यहाँ भी ये पता चलता है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन मेन इज ग्रेटर देन वीमेन। मीन्स मोर प्रपोर्शन ऑफ मेन पॉपुलेशन इज वर्किंग एज कम्पेयर टू वीमेन, मीन्स मोर मेन आर वर्किंग एज कम्पेयर टू वीमेन। ये दो कंक्लूजन हमने ड्रॉ करा। पहला, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन मेन पॉपुलेशन इज मोर एज कम्पेयर टू वीमेन population, of worker population ratio in rural areas is more as compared to urban areas। मतलब अर्बन एरियाज़ में कम लोग काम कर रहे हैं, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा। मोर मेन आर वर्किंग, लेस वीमेन आर वर्किंग। ये दो कंक्लूज़न मिले हमको इस वाले स्लाइड से और पिछले स्लाइड से। तो अब इन दोनों की कॉजेज़ क्या होते हैं ये जानने की हम कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि वाई आर मोर पीपल फाउंड वर्किंग इन रूरल एरियाज़ एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। रूरल एरियाज़ में अर्बन एरियाज़ से ज़्यादा लोग काम करते हुए पाए जाते हैं। तो इसका कारण पूरा यहाँ पे लिखा गया है जो कि काफ़ी बड़ा है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर इसका आंसर आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं जो यहाँ पे दिया गया है, या अपने से इसमें मॉडिफिकेशन करके अपने वर्ड्स, अपने सेंटेंसेस, अपने शब्दों में इसको आप लिख सकते हैं। पहले हम बात करते हैं रूरल की और यहाँ लिख देते हैं अर्बन। अब मुझे बताइए रूरल एरियाज़ में किस काइंड की जॉब्स अवेलेबल होती हैं। रूरल एरियाज़ में मैनुअल काइंड ऑफ जॉब्स अवेलेबल होती हैं, मैनुअल जॉब्स। अर्बन एरियाज़ में जॉब्स कैसी होती हैं, स्किल्ड जॉब्स। अर्बन एरियाज़ में स्किल्ड जॉब्स। स्किल्ड जॉब्स का मतलब क्या होती है, जॉब्स जिसके लिए स्किल और हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैनेजर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बैंकर्स, साइंटिस्ट्स, प्रोफेसर्स एक्सेट्रा। इस तरह की जॉब्स जनरली अर्बन एरियाज़ में अवेलेबल होती हैं। टेक्नीशियंस, इस तरह की जॉब मोस्टली अवेलेबल होती हैं अर्बन एरियाज़ में। उसके बाद रूरल एरियाज़ में मोस्टली मैनुअल जॉब्स अवेलेबल होती हैं, लाइक लेबरर्स वर्किंग एज लेबरर्स इन फार्मर्स फील्ड। ज़्यादातर लोगों को जॉब जो मिलती है बिग फार्मर्स के एग्रीकल्चरल फील्ड में एज ए लेबरर उनको जॉब मिलती है। तो रूरल एरियाज़ में मैनुअल जॉब्स, अर्बन एरियाज़ में स्किल्ड जॉब्स। अब ये जो मैनुअल जॉब्स होती हैं इसके लिए कोई भी स्किल या हायर एजुकेशन या ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो रूरल एरियाज़ में जो मैनुअल जॉब्स होती हैं उसको टेकअप करने के लिए यही जॉब्स अवेलेबल हैं, मोस्टली यही जॉब्स मिलती हैं जिसके लिए स्किल, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
That is why in rural areas, uh, just after completing the school education, or in some areas, or by some families, even without providing any education to their children, or by some families, after providing the primary education in some families, by after providing secondary in some families, after providing school education, their children are sent to work in the farmer's field, because the manual jobs are available in rural areas, for which skill higher education and training is not required. On the other hand, in urban areas, skilled jobs are available, mostly like engineers, doctors, chartered accountants, technicians, etc. To acquire these types of jobs, or to get these types of jobs, after school education, children require to acquire skills, higher education, training also, then only they can get these jobs. That is why just after completing their school education, they don't start working, but firstly they go to schools, colleges, research institutes, training institutes, to acquire higher education, training and skill. That is why they have to spend more number of years after school education in these institutes, like colleges, research institutes, training institutes. Then only they can get the job, or they get the jobs. That is why they start working late, the people of urban areas, whereas in rural area, just after completing the school education, people start working. That is why they start working early. तो रूरल एरियाज़ में लोग जल्दी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, अर्बन एरियाज़ में लेट काम करना स्टार्ट करते हैं. सेकेंड थिंग, रूरल एरियाज़ में हायर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इफ़ सम फैमिलीज वांट टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन, दे कैन नॉट प्रोवाइड, because the facilities are not available. That is why they are compelled to send their children to work just after completion of school education. Third thing, if in some areas facilities of higher education and training are available in rural areas, most of the families are not able to provide these facilities to their children because of lack of money, because of poverty. So these are the reasons why in rural areas, most of the children are sent to work early, just after completion of their school education. That is why more people are found working in rural areas, whereas in urban areas, the kind of jobs which are available for that, these skills, higher education and training are required. That is why by their family members, by their parents, children are, after completion of school education, sent to schools, colleges, research institutes, to acquire these things, skills, higher education and training, and then they start working. That is why they start working late. Second thing, in these urban areas, in most of the urban areas, facilities of higher education training are available. That is why it is very easy for the parents to provide these facilities to the children. And third thing, most of the families are very much able to provide these facilities to their children. That is why most of the children in urban areas are sent to after school, uh, colleges, research institutes, training institutes, to acquire skills, higher education. That is why they start working late. Since in urban areas people start working late, and in rural areas people start working early, that is why in rural areas more people are found working as compared to urban areas. तो यही पॉइंट लिखा गया है, इन रूरल एरियाज पीपल स्टार्ट वर्किंग अर्ली बिकॉज generally manual jobs are available in rural areas, for which higher education and training are not required. So just after completing the school education, many people start working. Even if some families want to provide higher education and training facilities to children, they are not able to do so, because these facilities are not available in rural areas. Even if facilities of higher education and training are available in some rural areas, most of the families are not able to provide these to their children because of poverty. On the other hand, in urban areas, people start working late, because generally skilled jobs are available in urban areas, for which higher education and training are required. So children require to spend more number of years in colleges and training centers to acquire higher education and training before taking up of jobs. And the facilities of higher education and training are available also in urban areas, and most of the families can afford to provide higher education and training also to their children in urban areas. So in rural areas, people start working early. That is why more people are found working in rural areas as compared to urban areas. So rural areas में लोग जल्दी वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए अर्बन एरिया से ज़्यादा लोग रूरल एरियाज़ में वर्क करते हुए दिखते हैं. सेकेंड जो कंक्लूजन हमने निकाला था वो था, वाई आर लेस वीमेन आर फाउंड वर्किंग इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू मेन. इसका कारण क्या है, ये अगला क्वेश्चन बनता है जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा भी जाता है. वाई आर लेस वीमेन फाउंड वर्किंग इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू मेन. फर्स्ट, बिकॉज ऑफ
discrimination in our society against women. This is the mindset of our society, and in spite of so much education and so much advancement in our society, the many families are not ready to change their mindset, which is against women freedom and liberty. And because of this, many families do not allow women members to work outside. बहुत सारी फैमिलीज विमेन मेंबर्स को आउटसाइड वर्क करने के लिए अलाउ नहीं करती हैं. सो मेनी वीमेन हैव टू डू हाउस होल्ड एक्टिविटी. इसलिए बहुत सारी वीमेन को हाउस होल्ड एक्टिविटी करना पड़ता है. दे हैव टू वर्क एज हाउस वाइफ्स. और हमारे कंट्री में जो वर्क का डेफिनेशन है वो एक फॉल्टी डेफिनेशन है. जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आपको पढ़ा रहा था, उसके प्रिकॉशंस बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि हाउस होल्ड सर्विसेज, दो सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाई people to their family members within family, these are known as household services, like services provided by housewives, taking care of old age parents, taking care of children, kitchen gardening, or gardening within the family. These household activities are not included in national income or GDP. Not included in national income GDP means these are not considered as इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. मीन्स वर्क मीन्स इकोनॉमिक्स में हमारे कंट्री में इन एक्टिविटीज़ को जो एक्टिविटीज़ हाउस वाइफ्स प्रोवाइड करती हैं, या जो भी एक्टिविटीज़ हम अपने फैमिली मेम्बर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने में करते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानी जाती है. क्योंकि मैंने बताया था इसका डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है. सिंस द कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ दीज एक्टिविटीज़ is not possible, that is why government of India doesn't consider, या central statistical organization doesn't consider these activities as economic activities, and these are not included in national income accounting. केवल वही activities जो हम करते हैं outside, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम आउटसाइड करते हैं, या जो एक्टिविटीज़ हम आउटसाइड करते हैं, मतलब जिन भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हम आउटसाइड करते हैं, मतलब प्रोडक्शन यूनिट्स में करते हैं. आउटसाइड मतलब अपने फैमिली के आउटसाइड, मतलब हाउस होल्ड के आउटसाइड करते हैं, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है. लेकिन जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हम विद इन फैमिली करते हैं, घर के अंदर करते हैं, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं माना जाता है. Since women are not allowed to work outside, that is why they have to do household activity. इसीलिए घर के अंदर वो बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते रहते हैं, जिनको बोलते हैं हाउस होल्ड एक्टिविटीज़. बट हमारी कंट्री में हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को तो वर्क नहीं माना जाता है. इसीलिए ये जो वर्क्स हैं या जो एक्टिविटी हाउस वाइफ्स करती है, क्योंकि दे आर नॉट अलाउड टू वर्क आउटसाइड, दैट इज़ वाई दे हैव टू वर्क विद इन देयर फैमिली, बट दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज वर्क. दैट इज़ वाई इट सीम्स दैट less women are working less as compared to men. Actually they are working more, but technically they are working less, because technically their work which are done by them within the family, that is not considered as work. That is why technically it seems that they are working less, but actually they are working more. Okay, तो हम टेक्निकल बात यहाँ पे करेंगे कि क्यों विमेन हमारे कंट्री में, जो या इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, या हमारे कंट्री में लेस विमेन आर फाउंड वर्किंग टेक्निकली. वाई? बिकॉज families do not allow the women members, many families, to work outside, so many women have to do household activities. इसलिए उनको अपनी क्रिएटिविटी या जो भी उनकी कैपेसिटी है वो घर के अंदर दिखाती हैं उसको. बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया, दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट कंसिडर्ड एज वर्क. दैट इज़ वाई लेस women आर फाउंड वर्किंग इन आवर कंट्री. नेक्स्ट हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ वर्कर्स. कितने तरह के वर्कर्स होते हैं? मेनली देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड हायर्ड वर्कर्स. सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स का मतलब जो अपना खुद का एंटरप्राइज जिनके पास होता है, खुद का उद्यम होता है, खुद का कोई इंस्टीट्यूशन होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस यूनिट होती है, और उसको ऑपरेट करके पैसा कमाते हैं, लाइवलीहुड अर्न करते हैं, उनको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स. दोज वर्कर्स हु ओन, जो ओनर होते हैं एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स. ऐसे सभी लोग जो अपना खुद का एंटरप्राइज जिनका होता है, एंटरप्राइज का मतलब कोई भी बिजनेस यूनिट, कोई शॉप हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, लाइक कोई हॉस्पिटल का ओनर है, या स्कूल का ओनर है, या कोचिंग सेंटर का ओनर हो गया, या कोई वर्कशॉप है किसी के पास, या कोई क्लिनिक है, या कोई रिटेल स्टोर है, या कोई प्रोडक्शन यूनिट है. इन सब के जो ओनर्स होते हैं, जो इन ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, प्रोडक्शन यूनिट्स, बिजनेस यूनिट्स को ऑपरेट करके अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं, इनको सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स बोलते हैं.
मतलब इनको किसी ने एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रखा है, ये अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं और उससे लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं। हमारे कंट्री में जो टोटल वर्कफोर्स है उसमें 52% आर वर्किंग एज सेल्फ एम्प्लॉयड। टोटल वर्कफोर्स के 52% वर्कफोर्स सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब टोटल वर्कर्स में से 52% वर्कर्स सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? ओनर्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स, जितने भी बिजनेस यूनिट्स हैं सबके ओनर्स, शॉप्स के, इंस्टीट्यूशंस के, ऑर्गेनाइजेशंस के, रिटेल स्टोर्स के, किसी भी या कोई प्रोडक्शन यूनिट्स के जो ओनर्स हैं, एज वेल एज ए फार्मर्स, ऑल द फार्मर्स हु आर डूइंग फार्मिंग ऑन देयर ओन लैंड, दीज आर ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयड। मेरे पास कोई लैंड है, उसमें मैं खुद फार्मिंग कर रहा हूँ, मतलब अपना खुद का फार्मिंग इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एंटरप्राइज। फार्मिंग जो हम कर रहे हैं वो भी एक तरह का क्या है, उसमें भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन गुड का कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का उद्यम हुआ, एंटरप्राइज हुआ। तो ये भी जो फार्मर्स हैं, जितने भी फार्मर्स हैं और जितने भी बिजनेस यूनिट्स के ओनर्स हैं, सब एग्जाम्पल हो जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के। और सेकेंड, हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स कौन होते हैं? दीज आर दोज वर्कर्स हु आर एम्प्लॉयड बाय सम अदर इंडिविजुअल्स और एजेंसीज एंड पेड फॉर देयर वर्क डन। ऐसे सारे लोग जिनको कोई एजेंसी या इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉय करते हैं, रोजगार पे रखते हैं, नौकरी पे रखते हैं, और जो भी ये काम करते हैं उनके लिए इनका एम्प्लॉयर, जिस भी एजेंसी या इंस्टीट्यूशन ने इनको रखा है काम पे, वो इनको पेमेंट कर रहा है। जैसे मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने नौकरी दिया है, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने मुझे एम्प्लॉय किया है, तो मैं हायर्ड वर्कर हूँ, क्योंकि मुझे सैलरी का पेमेंट कौन करता है? केंद्रीय विद्यालय संगठन करता है। तो मैं किसका एग्जाम्पल हो जाऊँगा? हायर्ड वर्कर का। तो हायर्ड वर्कर्स ऐसे वर्कर्स होते हैं जो अपने खुद का कोई बिजनेस नहीं करते हैं, बल्कि इनको कोई एम्प्लॉयमेंट पे रखता है, कोई एम्प्लॉय करता है, कोई रोजगार पे रखता है, कोई जॉब पे रखता है, और उसके बाद जो भी काम ये करता है उसके लिए इसका एम्प्लॉयर इसको पेमेंट करता है। अब दो तरह के हायर्ड वर्कर्स होते हैं, कैजुअल वेज लेबरर्स। These are those workers who are employed by some other individuals or agencies on temporary basis and paid wages for their work done. ऐसे सभी इंडिविजुअल्स जिनको कोई अदर एजेंसीज या अदर इंडिविजुअल्स जॉब पे रखते हैं, लेकिन परमानेंट जॉब पे नहीं, टेम्परेरी जॉब पे, जितने दिन ये काम करते हैं उतने दिन के लिए इनको वेज दिया जाता है। जैसे हमारे घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो हम कुछ लेबरर्स को लेबर मार्केट से पकड़ के लाते हैं, 4 दिन 5 दिन उनसे काम कराए, जितने दिन काम कराए उतने दिन के लिए वेज का पेमेंट किया, और उसके बाद उनको हमने हटा दिया। तो इनको जो हमने काम पे रखा वो परमानेंट जॉब पे नहीं रखा, टेम्परेरी जॉब पे रखा। इनको बोलते हैं कैजुअल वेज लेबरर्स। इन इंडिया 30% ऑफ वर्कफोर्स इज कैजुअल वेज लेबरर। हमारे कंट्री के वर्कर्स में से 30% वर्कर्स कैजुअल वेज लेबरर्स हैं। एग्जाम्पल इनके क्या होते हैं? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जितने भी बिल्डिंग्स या रोड्स, रेलवेज, एयरवेज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो वर्कर्स काम करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबरर्स हैं, या इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं कैजुअल वेज लेबरर्स के। अब रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? दीज आर दोज वर्कर्स who are employed by some other individuals and agencies on permanent basis and are paid salary for their work done. ऐसे सभी इंडिविजुअल्स जिनको कैजुअल वेज लेबरर्स की तरह ही दूसरी एजेंसीज या इंडिविजुअल्स एम्प्लॉय करते हैं, जॉब पे रखते हैं, बट इनको जॉब पे परमानेंट बेसिस पे रखते हैं, अनलाइक कैजुअल वेज लेबरर्स, और इनको पे किया जाता है सैलरी। मतलब यदि किसी को सैलरी का पेमेंट किया जा रहा है तो वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय हो जाएगा, वेज का पेमेंट कैजुअल वेज लेबरर, टेम्परेरी जॉब कैजुअल वेज लेबर, परमानेंट जॉब रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़। इन इंडिया 18% वर्कफोर्स इज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। लगभग 18% वर्कफोर्स रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय में आती है। और इसके एग्जाम्पल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैनेजर्स, प्रोफेसर, टीचर्स, ये आता है। तो 3 तरह के, मतलब मेनली 2 वर्कर्स सेल्फ एम्प्लॉयड, हायर्ड में 2 कैजुअल वेज एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़, ये 3 ग्रुप ऑफ वर्कर्स हो गए। इसमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें जो भी वर्क है वो बेस्ट काइंड ऑफ वर्क है? वो है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि इसमें जो भी जॉब मिलती है प्रोफेशनल के रूप में जॉब मिलती है, और हायर सैलरी मिलती है, इसमें सफिशिएंट सैलरी मिलती है टू लिव अ हाई स्टैंडर्ड लाइफ। और कैजुअल वेज लेबरर में तो इनसफिशिएंट वेज मिलती है, जिससे अपनी बेसिक नीड्स को भी लोग पूरा नहीं कर पाते, इसमें से ज़्यादातर लोग पॉवर्टी में रहते हैं। अब आप कहोगे कि सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, इनकी भी कंडीशन अच्छी होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स में से केवल कुछ की कंडीशन अच्छी होती है, जो बड़े बिजनेस यूनिट्स के ओनर्स होते हैं। इसमें तो वो भी आते हैं जो कोई वेंडर्स और हॉकर्स होते हैं, जिनकी जो हॉकिंग या वेंडिंग करते हैं वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनका अपना इंटरप्राइज है, लेकिन वो बहुत कम पैसा कमा पाते हैं।
इवन स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो सब भी इसी में आते हैं। तो इसके ज़्यादातर जो इंडिविजुअल्स 52% आ रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स में से, इनमें से ज़्यादातर की कंडीशन बहुत ख़राब है। आप ये मत समझिएगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब जो अपना बिजनेस करते हैं और बिजनेस जो करता है वो तो बहुत प्रॉफिट अर्न करता है। ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जिनके बिग बिजनेसेस हैं और जो अपने बिजनेस यूनिट से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं या बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स हैं, ये कुछ ही तो है हमारी कंट्री में, बहुत ज़्यादा थोड़े ना हैं। और उसके अलावा और जितने सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं वो स्मॉल इंटरप्राइजेज, छोटी उनके पास शॉप होती है। कुछ लोग ठेला लगा रहे हैं, कुछ सब्जी बेच रहे हैं, कुछ फ्रूट्स बेच रहे हैं, ये हॉकिंग कर रहे हैं, वेंडिंग कर रहे हैं। ये सब जो वेंडर्स, हॉकर्स, ये सब हैं, डोर टू डोर जाके आपको डिफरेंट गुड्स को बेचते हैं, सब सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं, स्मॉल फार्मर्स। तो इन सब की कंडीशन बहुत ख़राब है। तो केवल एक ही तरह का वर्कर है जिसमें सबकी कंडीशन बहुत अच्छी होती है, या उसमें हर तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं सब कम से कम इतना पैसा कमा लेते हैं कि एक हाई लेवल या डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकें। वो होता है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। तो बेस्ट काइंड ऑफ वर्क जो होता है या बेस्ट काइंड ऑफ जॉब होता है वो होता है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। और थोड़ा इससे ख़राब लेकिन सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ जॉब होता है कैजुअल वेज लेबरर्स का। और बेटर जॉब होती है, हम कह सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की बेटर कंडीशन होती है। तो सबसे अच्छी कंडीशन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय की, बेटर कंडीशन सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की, और वर्स्ट कंडीशन होती है कैजुअल वेज लेबरर्स की। तो ये 3 काइंड ऑफ वर्कर्स हो गए। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। जेंडर के बेसिस पे जो 3 तरह के वर्कर्स होते हैं, 3 तरह के एम्प्लॉयमेंट होते हैं, उसमें मेन में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और वीमेन में डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। तो मेल वर्कर्स के यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, इसमें से 51% सॉरी कि जो मेन वर्कर्स हैं इसमें से 51% सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, 31% कैजुअल वेज लेबरर्स हैं और 18% रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं। ऐसे विमेन में देखा जाए तो कैजुअल वेज लेबरर्स 37% एंड रेगुलर सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड 55%, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय 8% है। तो बेस्ट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अभी मैंने बताया था, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट बेस्ट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो इसी के बेसिस पे केवल कंपैरिजन करेंगे, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि हम मेन पॉपुलेशन या मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन की बात करें तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल पॉपुलेशन। ओनली 8% female population is working as regular salaried employment, whereas 18% of male population is working as regular salaried employment, means as regular salaried employee। मतलब regular salaried employment जो best kind of job है, इसमें भी dominance किसका है, male individuals का है। more male are found working as regular salaried employment, sorry, as regular salaried employees as compared to female। why? एक ये क्वेश्चन बनेगा, इसको आगे हम देखेंगे ऐसा क्यों। उससे पहले कंपैरिजन कर लेते हैं काइंड ऑफ वर्कर्स का अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ के बेसिस पे। अर्बन वर्कर्स में यदि देखें तो फिर से हम कंपैरिजन करेंगे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ का। अर्बन एरियाज़ में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ 40% है, रूरल एरियाज़ में ओनली 7%। So in rural areas, only 7% people are working as regular salaried employees, whereas in urban areas 40%. So more people in urban areas are working as regular salaried employees as compared to rural areas. Why? ये भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो अब 2 क्वेश्चन हमारे सामने आ गए। Why are less women found in regular salaried employment as compared to men? तो जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट होता है वो किस तरह का एम्प्लॉयमेंट है। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट मीन्स employment as teachers, professors, chartered accountants, managers, administrators, doctors, engineers, ये सब स्किल्ड जॉब्स हैं। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, स्किल्ड जॉब्स। और स्किल्ड जॉब्स के लिए क्या चाहिए, हायर एजुकेशन ट्रेनिंग। हायर एजुकेशन और ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ मोस्ट ऑफ द फैमिलीज डू नॉट अलाउड टू द फीमेल मेम्बर्स। दैट इज़ वाई most of the female, yeah, most of the women in our country are not allowed by their family members to acquire higher education and training facilities, and because of that they are not able to get regular salaried employment as skilled jobs. That is why less women are found working in regular salaried employment. It is यही लिखा गया है, it is because regular salaried employment requires skill and efficiency for which getting higher education and training facilities are required. But many families in our country do not allow the girls to acquire higher education and training facilities. ये इसका कारण हो गया। दूसरा, why are regular salaried employees more in urban areas than in rural areas?
अर्बन एरियाज़ में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ ज़्यादा क्यों हैं? फिर से वही, इट इज़ बिकॉज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर स्किल एंड एफिशिएंसी फॉर विच गेटिंग हायर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड, and these facilities are mostly available in urban areas and mostly not available in rural areas. But most of the rural areas the facilities of higher education and training facilities are not available. तो ये रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट के लिए हायर एजुकेशन ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ चाहिए, रूरल एरियाज़ में नहीं है, अर्बन एरियाज़ में है। इसीलिए अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा जो चिल्ड्रन होते हैं उनको हायर एजुकेशन और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ मिलती है, इसीलिए मोर एंड मोर नंबर में अर्बन एरियाज़ के चिल्ड्रन को रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ऐसे यदि विमेन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज डू नॉट अलाउ गर्ल्स टू acquire हायर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़. So because of lack of these, only few women, most of the girls are not able to get these type of jobs, regular salaried jobs or regular salaried employment. That is why less women are found in these types of employment. Next, employment in various sectors, जिसको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. उसमें मैंने बताया था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड पढ़ाया था, बताया था. इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन अ कंट्री. जो वर्कर्स होते हैं वो वर्क करते हैं कहाँ पे, या जॉब कहाँ पे करते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर में करते हैं, बताया था मैंने आपको. अब जो प्रोडक्शन सेक्टर होता है उसके 3 सब सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर. तो मतलब जितने भी वर्कर्स होते हैं जिसको वर्क फोर्स बोलते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन सेक्टर के 3 सब सेक्टर्स में ही होगा. कुछ प्रोडक्शन सेक्टर के प्राइमरी सेक्टर में काम करेंगे, कुछ सेकेंडरी, कुछ टर्सरी सेक्टर में. तो ये जो एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस सेक्टर या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है वो यही बताता है कि हाउ मेनी या व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स इज़ वर्किंग इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, ये बताता है. इट इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है कि वर्क फोर्स में से कितने परसेंटेज प्राइमरी सेक्टर में, कितने सेकेंडरी और कितने टर्सरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बहुत सारे इंडिकेटर्स में से एक इंडिकेटर होता है. इसको स्टडी करके हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पता लगा सकते हैं कंट्री का कि ज़्यादा हुआ है कि कम. कैसे? मोर इज़ द डिपेंडेंस ऑफ वर्क फोर्स इन प्राइमरी सेक्टर, लेस विल बी द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वाइस वर्सा. जितनी ही ज़्यादा वर्कर्स का डिपेंडेंस प्राइमरी सेक्टर में होगा या जितने ही ज़्यादा वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे होंगे उतना ही कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आउट ऑफ 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स, मैंने आपको जब पढ़ा रहा था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर, दैट टाइम मैंने बताया था कि प्राइमरी सेक्टर मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर को बोलते हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर में मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट बहुत कम है, तो लेस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनके ओनर्स को प्रॉफिट होता है, तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है. और बेस्ट सेक्टर कौन सा होता है? टर्सरी सेक्टर होता है. मैंने आपको बताया था टर्सरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर मतलब ऐसा सेक्टर जिसमें प्रोफेशनल्स काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा. तो इसमें टर्सरी सेक्टर में जितने लोग भी होते हैं सबकी कंडीशन बहुत अच्छी होती है. जितने लोग भी एम्प्लॉयमेंट पाते हैं टर्सरी सेक्टर में, मतलब चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, प्रोफेसर्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, मैनेजर्स हो, टेक्नीशियंस हो, सब कम से कम इतना पैसा कमा लेते हैं कि हाई लिविंग स्टैंडर्ड यदि न मेंटेन कर पाएँ तो एक डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएँ, तो बेस्ट सेक्टर होता है. इस सेक्टर की जॉब्स बेस्ट होती हैं. सेकेंडरी सेक्टर में कुछ तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं कि वो वन ऑफ द रिचेस्ट इंडिविजुअल्स ऑफ कंट्री बन जाते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं. लेकिन इसमें जो लेबरर्स आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में या इंडस्ट्रीज़ में काम करने, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के जो लेबरर्स होते हैं उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है सेकेंडरी सेक्टर के. तो इस तरह से सेकेंडरी सेक्टर में कुछ की कंडीशन बहुत अच्छी, कुछ की कंडीशन ख़राब. तो ऑन एन एवरेज हम देखा जाए तो इसमें कंडीशन मॉडरेट होती है लोगों की. और प्राइमरी सेक्टर में तो लीस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर है, इसमें ज़्यादातर की कंडीशन बहुत ही ख़राब होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर इन लॉस एंड इन द बर्डन ऑफ ह्यूज बोरोइंग्स. ओके, तो प्राइमरी सेक्टर लीस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर होता है. तो यदि मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन लीस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ मीन्स overall condition of economy in this situation would be unfavorable. Underdeveloped economy. That is why different policies and programs are implemented by the various governments
so that the more and more people can be shifted from agriculture sector to primary sector to secondary and tertiary sectors. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा होगा या इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज़ हो रहा होगा यदि वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स की तरफ मूव करे तो। यदि प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स की तरफ मूव कर रहे हैं मतलब लीस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर से मोर प्रॉफिटेबल सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। लेकिन यदि मूवमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, सेकेंडरी सेक्टर टू प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर टू प्राइमरी सेक्टर, इसका मतलब मोर प्रॉफिटेबल सेक्टर टू लीस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं और इकोनॉमी की कंडीशन उस समय क्या हम कहेंगे कि ख़राब है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो है या डिक्रीज़ हो रहा है। इसीलिए एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस सेक्टर जानना जरूरी है, सो दैट गवर्नमेंट कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यदि ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में है इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, गवर्नमेंट को वेरियस एफर्ट्स लेने की रिक्वायरमेंट है। अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग। एग्रीकल्चर, माइनिंग और क्वेरिंग जिस सेक्टर में होती है उसे प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन। टर्सरी सेक्टर इट इंक्लूड्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड सर्विसेज। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आती हैं टर्सरी सेक्टर में। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट टॉपिक्स विल बी एक्सप्लेन्ड इन टुमारोज क्लास, टुमारोज वीडियो। थैंक यू।